वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। एज यू नो, 6th स्टैंडर्ड सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन अभी सैटरडे को था। आज हम उसका इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है उसको चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा सही आंसर है, कौन सा गलत है। चलिए, पहला क्वेश्चन, राहुल इज डैश इंटेलिजेंट सन ऑफ डैश पुअर फार्मर। 3 इसका आंसर सही होगा। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन इंटेलिजेंट सन ऑफ अ पुअर फार्मर। Rahul is an intelligent son of a poor farmer. Now Charu's handwriting is illegible. ये वाला illegible बेटा. This illegible, ILLIGIBLE is the correct answer. Charu's handwriting is illegible. I am unable to read it. While I dash a letter, my teacher came while I was writing. Was writing continuous tense लगेगा यहाँ पे के दौरान, कि मेरे लेटर लिखने के दौरान जब मैं लिख रहा था तब मेरे टीचर आए. While I was writing, my teacher came. Choose the correct option, complete the sentence. Dash car is parked over there. उनकी कार, this is THEIR, parked over there, THERE. Their car is parked over there. 4th is the correct option here. Fill in the blank with suitable question tags. He works in school. The auxiliary here is hidden. We know it is does, because simple present में third person singular के साथ auxiliary does लगता है. So doesn't he will be the correct answer. 4th, he works hard in school. Doesn't he? Then 6th, Soham had sung a song. Had sung देखिए, auxiliary had, verb V3, so past perfect tense बिल्कुल सही है. Soham had sung a song. Identify the nouns used in the following sentences. Every person should perform his duty. Person and duty. Person common noun, duty abstract noun. So person and duty is the correct answer. A is the correct answer. Every आपको याद होगा यहाँ पे adjective है, perform एक verb है, every भी यहाँ पे एक adjective है. Every person को modify कर रहा है, यहाँ पे adjective है. This is the girl dash all admire whom बेटा, whom, why, how do you know whom? All admire her बोलते हैं हम लोग. अगर इसको अलग sentence बता रहे हो तो हम कहते थे there is the girl, this is the girl, everyone admires her. तो her लगता, her is the object's case, object case whom लगेगा, ना कि who लगेगा. 2 is the correct answer. सेपरेट का सही स्पेलिंग 2, ये 3 गलत किया हुआ है बच्चे ने. यहाँ पे 2 इज द करेक्ट आंसर. सेपरेट, SEPARATE, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सेपरेट, नॉट द वन दैट ही हैज मार्क्ड. सेपरेट मतलब अलग, भिन्न, अपार्ट, नॉट टुगेदर. ऑलराइट, देन वी गॉट अ मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्मेशन. देखिए, अब इसमें फिर से हम वही करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे कहां लिखा है. या तो 6 स्वेटर्स हो सकता है या पश्मीना शॉल हो सकता है, बट 6 स्वेटर्स के बाद कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप पश्मीना शॉल से शुरू करेंगे. अब पश्मीना शॉल इज, फिर एज वार्म एज, इट इज बिलीव्ड दैट, बल्कि बी से शुरू होगा पश्मीना शॉल, क्योंकि इट इज बिलीव्ड कहीं नहीं डाल सकते हम वरना. इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स. BDAC. 4th is the correct option. BDAC. It is believed that a pashmina shawl is as warm as 6 sweaters. It is the main subject here. It is believed that a pashmina shawl is as warm as 6 sweaters. 4th is the correct option. अच्छा, यहाँ पे ऑपोजिट ढूंढना है हमें हाइटन का. पर हाइटन का मतलब बढ़ाना, तो स्ट्रेंथन, मैक्सिमाइज, वाइडन सब एक जैसे मीनिंग है. आंसर क्या है? डिक्रीज. हाइटन का आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज. Find a word which is opposite in the meaning. Opposite of heighten will be decrease. Similar in meaning बताना है demise का. Sorry for the demise of someone. Demise मतलब death, मरना किसी का. तो death is the correct option here. Similar in meaning, same in meaning, synonym. Synonym of demise, death. There is not a student dash Mohit in our class. भाई as intelligent as, देखिए मैंने आपको बताया था पॉजिटिव जो होते हैं वो यूज किए जा सकते हैं दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, जब हम कहें दोनों एक जैसी है या नहीं है. यहां हम कह रहे हैं देयर इज नॉट अ स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मोहित जितना इंटेलिजेंट है. सो एज इंटेलिजेंट एज इज व्हाट विल कम हियर. अगर इंटेलिजेंट दैन होता तो मोर इंटेलिजेंट दैन होना होता. एज द मोस्ट इंटेलिजेंट दैन कोई मतलब ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही गलत है. मोस्ट इंटेलिजेंट एज स्ट्रक्चर ही गलत है. यहां पे स्ट्रक्चर अधूरा है. मोर यहां पे लगा होता तो ये भी हो सकता था, पर कंफ्यूजन करना नहीं उनको, तो मोर नहीं लगाया यहाँ पे. एज इंटेलिजेंट एज सही हो जाएगा आंसर. 1 इज द करेक्ट आंसर. भाई यू हैव डन वेल, ब्रावो. अलास तो कहते हैं दुख के लिए, ओ कहते हैं सरप्राइज के लिए, ऊप्स कहते हैं गलती के लिए, ब्रावो कहते हैं शाबाशी के लिए. शाबाश, आपने बढ़िया किया. तो ब्रावो, यू हैव डन वेल. करेक्ट इडियम चूज करना है यहाँ पे. भाई इट हैज बीन रेनिंग, अभी पढ़ाया था हमने क्लास में, कैट्स एंड डॉग्स.
भारी भरकम मूसलाधार बारिश, तो कहते हैं हम क्या, ह्यू एंड क्राई भी पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो, जो हमने सेंटेंसेस किए थे एंड में एग्जांपल्स वाले, उसमें ह्यू एंड क्राई भी आया था, रेज ह्यू एंड क्राई, रेज ह्यू एंड क्राई मतलब शोरगुल करना, प्रोटेस्ट करना, किसी चीज के विपरीत आवाज उठाना। बट रेनिंग के लिए कैट्स एंड डॉग्स यूज होता है, कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार बारिश, बहुत जोर की बारिश। चूज द मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा, फ्लावर्स के लिए ये भी किया था हमने, मुझे याद है जयन बैठे थे यहाँ पे, जयन से पूछा गया था ये क्वेश्चन कि फ्लावर्स का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और उन्होंने आंसर किया था बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स, ये भी किया था हमने। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट याद रखिए भाई, आई विश टू नो वेदर, यहां पे वेदर हमने कंजंक्शंस में किया है, वेदर, तो यहां पे वेदर आएगा, और द वेदर, ये वेदर है मौसम, उसकी स्पेलिंग होती है WEATHER, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, WHETHER वेदर, यहां पे कंजंक्शन आ गया है, विश टू नो वेदर की क्या, और नॉट, वेदर और पढ़ाया था हमने, वेदर और साथ में कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, और द वेदर WEATHER वेदर, मौसम की बात हो रही है, तो 3 is the correct option here. And change the gender of the underlined word. By fox ka we checked the gender. This is something that I also made you write. Vixen is the correct answer. Fox ka vixen. Hey God, my mother will come soon. We saw this. This is an adverb. It's talking about time. Adverb of time will come soon. Adverb of time. Conjunction तभी होता जब किसी चीज को जोड़ता. Adjective होता किसी noun को अगर ये modify कर रहा होता, और साथ में नाउन होता है, कोई चीज होता है, कोई सामान होती, कोई वस्तु होती, पर नहीं है, यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है कम को, कब आएंगे, जल्दी आएंगे, तो एडवर्ब हो गया। प्लूरल ऑफ फॉर्मूला इन शीप, आई टोल्ड यू द प्लूरल ऑफ शीप इज शीप, हर्षिता यू रिमेंबर, लास्ट डे ओनली आई वाज टेलिंग यू दिस, तो शीप ही होगा, बट फॉर्मूला का प्लूरल क्या होता है, फॉर्मूले, दिस आल्सो वी डिड इन द बिगिनिंग व्हेन वी डिड द नाउन्स वाला पार्ट, आई टॉट यू, आई मेड यू राइट एन एंटायर लिस्ट ऑफ प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, फॉर्मूला का प्लूरल मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूले, प्लूरल ऑफ फॉर्मूला इज formulae. Formula in sheep, 3 will be the correct option. All right, now we have a passage. Passage में again, as I said, first read the questions. It will make it easier for you. सबसे पहले according to the author, which is the easiest art, सबसे आसान आर्ट कौन सी है ये पूछा है। फिर पूछा how can you become popular, आप पॉपुलर कैसे बन सकते हैं। फिर on the basis of the author's view, which statement is not true, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है ऑथर के अकॉर्डिंग। अभी फाइनली पैरा 1 में कौन सा विद इन रीच कौन सा है, कौन सा शब्द का मतलब विद इन रीच है, एंड फाइनली चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक। चलिए पढ़ेंगे सबसे पहले। कॉन्वर्सेशन इज अ फाइन आर्ट, बातचीत की जो आर्ट है वो फाइन आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है। इट इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स, इट इज एन आर्ट व्हिच एनीबॉडी कैन कल्टिवेट और मास्टर। कल्टिवेट देखो वर्ड आ गया यहाँ पे, हमें इसका आंसर पता चल गया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू कल्टिवेट गुड मैनर्स। कल्टिवेट मतलब उगाना, अपने अंदर बढ़ाना, अपने अंदर ग्रो करना। कल्टिवेट यूज होता है पेड़ पौधों के लिए भी, when you cultivate wheat, cultivate etc, anything that you are cultivating at home or in the farm, कल्टिवेट मतलब होता है उगाना, बढ़ाना, किसी चीज को पानी देकर या समय देकर या इंटेंशन देकर रेज करना, किसी चीज को ऊंचा उठाना। नॉट एवरीबडी कैन पेंट और प्ले म्यूजिक बट ऑलमोस्ट एवरीवन कैन टॉक, तो देखो एवरीवन कैन टॉक इसमें मतलब इजी है, कौन सी आर्ट इजी है, कॉन्वर्सेशन, एक्सचेंजिंग थॉट्स, ये आंसर आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू द ऑथर, विच इज द इजीएस्ट आर्ट, एक्सचेंजिंग थॉट्स। नॉट एवरीबडी कैन पेंट और प्ले म्यूजिक बट ऑलमोस्ट एवरीवन कैन टॉक, और टॉक क्या है, टॉकिंग इज जस्ट एक्सचेंजिंग थॉट्स। Thus it affords to talk, says R.L. Cleverson, is our chief business in the world. सबसे बड़ा काम हमारा, जो सबसे मेन हमारा काम है बातें करने का। बातें करके ही आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो, बातें करके ही अपने बारे में बताते हो, बातें करके ही दूसरे के बारे में जानते हो, बातें करके ही पढ़ाते हो, बातें करके ही सीखते हो। एंड टॉक इज बाय फार द मोस्ट एक्सेसिबल ऑफ प्लेजर्स, और सबसे ज्यादा आनंद भी आपको जो आएगा एक्सेसिबल। देखो एक्सेसिबल मतलब विद इन रीच, एक और आंसर आ गया यहाँ पे। विद इन रीच का मतलब क्या होता है, एक्सेसिबल, आप पहुंच सकते हो, आपकी पहुंच में है, आपकी पहुंच में है मतलब एक्सेसिबल है, आप यूज कर सकते हैं उसे। अच्छा, इट कंप्लीट्स आवर एजुकेशन, प्लेजर्स, इट कॉस्ट्स नथिंग इन मनी, इट इज ऑल प्रॉफिट, कोई पैसा नहीं लगता बातें करने का, कभी कभी लगता भी है। इट कंप्लीट्स आवर एजुकेशन, मेक्स फ्रेंड्स एंड कैन बी एंजॉयड एट एनी एज। कॉन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट, सबसे सिखाई जाने वाली जो कला अगर है तो वो बात करने की कला है। ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड अ सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट्स यू एंड योर लिसनर्स, ऐसा सब्जेक्ट चुने जो आपके और आपके सुनने वालों के दोनों के इंटरेस्ट का हो। फॉर एग्जाम्पल, नंबरलेस हॉबीज टू टॉक अबाउट, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट टॉक अबाउट द अदर फेलोज हॉबी। अदर फेलोज हॉबी, देखो हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर, बाय टॉकिंग अबाउट आवर हॉबीज, नहीं, बाय टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबी। सो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, यू कैन बिकम पॉपुलर बाय टॉकिंग अबाउट listeners hobby.
देयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी. देखो, देयर इन लाइज द सीक्रेट, मतलब वहां छुपा है आपके पॉपुलैरिटी का सीक्रेट. कहां पे? कि आप सामने वाले की इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. देयर इज नथिंग दैट प्लीजेस पीपल सो मच एज योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट. अगर आपको रुचि है उनकी रुचि में, तो उससे ज्यादा रुचिता किसी चीज में हो ही नहीं सकती. एक रुचिता हमारे सामने बैठी है, बताइए हमें मार्क्स कितने आएंगे उनके. इट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट सब्जेक्ट टू अवॉइड एंड व्हाट सब्जेक्ट्स टू सिलेक्ट फॉर गुड कन्वर्सेशन. भाई उतना ही जरूरी है जानना क्या बात नहीं करनी है, जितना जरूरी है जानना कि क्या बात करनी है. इफ यू डोंट वांट टू बी सेट डाउन एज अ बोर, अवॉइड सर्टेन अनप्लेजेंट टॉपिक्स. अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपको बोरिंग समझे, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको अवॉइड करने चाहिए. जैसे क्या? अवॉइड टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो. जब तक कि आपको बोला ना जाए आपके बारे में बात करने के लिए, अपने बारे में बात न करें. ज्यादा बात करेंगे अपने बारे में, सामने वाला बोर हो जाएगा. सिकनेस और डेथ बोस एवरीवन. भाई बीमारी की और मृत्यु की बात करते रहेंगे हमेशा, तो भी वो सामने वाले को पका देगा. एक ही व्यक्ति जो सुनता है आपकी बात, कौन सी बात? बीमारी की और मृत्यु की, वो है डॉक्टर. और वो भी इसलिए क्योंकि उसकी कमाई है उसमें, तो कमाएगा उस चीज से, इसलिए सुन रहा है. द ओनली वन हु इज विलिंग टू लिसन टू सच टॉक इज द डॉक्टर, बट ही गेट्स पेड फॉर इट. तो पैसा मिलता है उस बात से. यू मस्ट ऑल्सो नो नॉट ओनली व्हाट टू से बट ऑल्सो हाउ टू से इट. तो इसका मतलब कैसे बोलना है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलना है. आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा था हमारा. ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथर व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. डॉक्टर्स आर विलिंग टू लिसन टू आवर मिजरीज एंड सीक्रेट्स. भाई दिस इज ट्रू. डॉक्टर्स आर विलिंग. व्हाई? बिकॉज दे अर्न फ्रॉम इट. नोइंग हाउ टू से इज नॉट एज इंपॉर्टेंट. ये गलत है. देखो यहाँ इन्होंने बोला है कि क्या बोलना है उतना ही इंपॉर्टेंट है, कैसे बोलना है जितना, कैसे बोलना है भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्या बोलना. तो नोइंग हाउ टू से इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू से. नहीं, ये गलत है. तो दिस इज द वन दैट इज ट्रू. 2 इज द करेक्ट ऑप्शन 23 का हियर. और टॉकिंग कैन बी अ मींस ऑफ प्लेजर. यस, दिस इज करेक्ट. टॉकिंग कॉस्ट नथिंग. दिस इज आल्सो करेक्ट. पैसेज के अकॉर्डिंग दिस इज करेक्ट. तो 2 इज द वन दैट पैसेज के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है. So that's that for the paper. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.